चलो शुरू करते हैं। हो गया। Let's talk about fuel. Fuel is a hydrocarbon. ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन. What does that mean? CN H2N plus 2. Alkanes, alkenes, alkynes. Remember all of that, है ना? हर एक चीज एक फ्यूल है. Any hydrocarbon is a fuel. Sugar is a fuel. Your body is a fuel. Daru is a fuel. Kerosene is a fuel. Alcohol is a fuel. Kerosene is a fuel. Okay? क्या फंडा है इसका? CnH2n, एनी हाइड्रोकार्बन, जब भी आप उसको कंबस्ट करते हो, फ्यूल इज समथिंग दैट इज कंबस्टेड. कंबस्टन इज ऑक्सीडेशन. जब भी आप ये करोगे, यू विल गेट CO2 plus H2O, both of which are colorless and odorless gases. So जो काला धुआं निकलता है वो क्या होता है? That is unburnt carbon, uncombusted carbon. Okay. Okay. Now tell me something. Where do you get fuel from? फ्यूल मिलता कहाँ से? फ्यूल मिलता है हमें क्रूड ऑयल से. क्रूड ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? हमें क्रूड ऑयल मिलता है रशिया से, सऊदी से, दुबई से. ठीक है, मिडिल ईस्ट वाली जितनी भी कंट्रीज है, जो भी तेल बेचने वाली कंट्रीज है, उनसे हमें क्रूड ऑयल मिलता है. बट ये क्रूड ऑयल इज कच्चा तेल. दिस क्रूड ऑयल इज कच्चा तेल. You cannot take this crude oil and put it in your car engines because it's crude. It's in its raw form. It has impurities. फिर आए हमारे पास अंबानी. अंबानी ने क्या किया? He purchases these oils, these crude oil, and he puts it in his refinery. कहाँ पे रिफाइनरी? करेक्ट, जामनगर की क्रूड ऑयल की रिफाइनरी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है. ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरीज. ठीक है जी. एंड ये रिफाइनरी में क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है. ठीक है, सो यू हैव बिग 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 फिल्टर्स जहाँ पे डिस्टिलेशन होता है, एंड in that distillation, fractional distillation, a lot of products are obtained at different levels. ठीक है, सबसे नीचे टार मिलता है. टार, काला काला टार. वो टार भी यूज होता है सड़कें बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए. द हेवीएस्ट इम्प्योरिटी टार. उसके ऊपर you have different grades of whatever products you get. You also get kerosene. Now they all are separated. You also get gasoline. Okay. So all of these fractional distillations करने के बाद ये सारी जो चीजें कलेक्ट होती हैं different levels, they are in the basis, they are collected on the basis of their densities. So gasoline has a lesser density than kerosene, which has a lesser density than other materials which are below it. एकदम ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा? गैस मिलेगा. एंड उस गैस को हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस. अब इस गैस को भी हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेस कर देते हैं एंड उसकी पाइपलाइन लगा के अलग अलग जगहों में CNG की तरह बेचते हैं. ओके, काइंड ऑफ लाइक मीथेन ओनली यार. कोई डाउट? What we need to understand is about kerosene and gasoline. Kerosene and gasoline are two fuels which are used in aviation. So in aviation, you have gasoline-based fuels and you have kerosene-based fuels. In jet engines, you must have studied about kerosene-based fuels, which are Jet A1, Jet A, A1, Jet B. Correct?
and diesel. In gasoline, you have MOGAS and you have avgas. Motor gasoline, aviation gasoline. So in American movies and web series and everything, you must have always come across them saying, I need some gas in my car. So here we call it petrol because more gas is nothing but petrol. Petroleum, petrol. There they call it motor gasoline because gasoline is actually the better word. Okay. Now all of these things, what is the difference between MOGAS and avgas? Avgas is a more processed form. Okay. Avgas is more pure. Let's just keep it that way. Now ये सारे जो फ्यूल्स हैं ये सारे कहाँ से हैं? क्रूड ऑयल से ही है, राइट? हम लोग कौन से यूज करते हैं? गाड़ियों में ये, पिस्टन इंजन वाले जहाजों में ये. अब कुछ पिस्टन इंजन वाले जहाज इससे भी काम कर सकते हैं. कोई डाउट? एनी डाउट? नो, राइट? ग्रेट. Now let's come back. These are the different fuels, and this is the origination of fuel. Let's come to the grades of fuel. Let's come to the grades of fuel. Now, any given fuel has a fuel grading. Okay. For example, avgas 80 or avgas 100, MOGAS 95. Okay. एंड ये ग्रेड्स का दूसरा नाम होता है ऑक्टेन रेटिंग. विल कम टू दैट. विल कम टू व्हाट ऑक्टेन रेटिंग इज. विल कम टू व्हाट ऑक्टेन रेटिंग इज. ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट these grades a little bit. We have avgas 80, we have avgas 100, and then we have avgas 100 LL. LL here stands for low lead. And इसका कोई परफॉर्मेंस नंबर होगा, इसका कोई ग्रेडिंग होगी. एज द नेम सजेस्ट, इसकी ग्रेडिंग है 80, इसकी ग्रेडिंग है 100 और इसकी ग्रेडिंग भी है 100. ओके. इनका कुछ कलर है? यस, बिल्कुल इनका कलर है. रेड. सो ऑल ऑफ दीज फ्यूल्स दे हैव अ डाई इन देम. ठीक है, डाई मतलब रंग. डाई मतलब रंग. वाई? ताकि आप इनको आपस में मिक्स ना कर दो यार. एंड आपस में एक दूसरे में ना मिक्स करो, एंड ऑल्सो आप इसको मोटर गैसोलीन से ना मिक्स कर दो. मोटर गैसोलीन का आपको कलर पता है. आपने अगर गैसोलीन बॉटल में भरी है, आपको पता होगा क्या कलर होता है. इट इज अ पेल येलो कलर, राइट? And this is blue, bright blue. As it is gasoline, any kerosene based fuel will have a specific gravity of 0.8. Specific gravity या density क्या होती है? It is the density relative to the density of water. If water's density is 1 gram per cubic centimeter, we all know water का density 1 gram per cc. इसकी density क्या है? 0.8 grams per cc. Understood? So what is specific gravity? कोई भी आपको कभी भी पूछे स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी. करेक्ट वर्ड इज रिलेटिव डेंसिटी.
इट्स दिस ओनली. ओके, चलो. आप लोगों ने ये नेविगेशन में पढ़ा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है. ठीक है. So anytime you have a kerosene based fuel, it's 0.8, and anytime you have a gasoline based fuel, the specific gravity will be 0.72. Okay. So all of these fuels specific gravity is 0.72, and the lead content here is high, high, and low. Sorry, here it's low. Now let us talk about these numbers. These numbers are called performance numbers, also known as octane rating. Also known as octane rating. Let's talk about octane rating है क्या. ये आपको याद रखना है. ठीक है, कलर याद रखना है, ऑक्टेन रेटिंग याद रखनी है. लेट्स टॉक अबाउट ऑक्टेन रेटिंग. ऑक्टेन रेटिंग इज बेसिकली अ वैल्यू व्हिच टेल्स यू कि यार आप इसको कितना कंप्रेस कर सकते हो. इसको हम लोग कहते हैं एंटी नॉक वैल्यू. इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेटोनेशन वैल्यू. ये वैल्यू जितनी हाई हो उतना अच्छा. दिस वैल्यू इज अ मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू डेटोनेशन. Of its resistance to detonation. Higher the number, the lower is the chance of detonation. Now, I'll explain. ये रेटिंग आई कैसे, इसका थोड़ा साइंटिफिक में जाता हूं मैं. आई वांट टू टीच यू गाइस दिस. साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने बोला बाबा ये हमारे पास फ्यूल है, इसकी ऑक्टेन रेटिंग बताओ. अब उन लोगों ने उसको दो फ्यूल के साथ कंपेयर किया. एक उन लोगों ने लिया आइसो ऑक्टेन. आइसो ऑक्टेन एक ऐसा फ्यूल है जो डेटोनेट होता ही नहीं है. इट हैज द बेस्ट एंटी डेटोनेशन प्रॉपर्टीज. ठीक है. फिर उन लोगों ने एक फ्यूल लिया हेप्टेन. हेप्टेन यार बहुत आसानी से डेटोनेट हो जाता है. ओके. सो अब हम लोगों ने देखा यार ये एक फ्यूल है, ये इसकी डेटोनेशन कंपेयर करनी है मेरे को और इसको एक रेटिंग देनी है. ठीक है. सो अगर मान लो ये बहुत जल्दी डेटोनेट कर दे रहा है, मतलब इसके अंदर हेप्टेन की प्रॉपर्टीज ज्यादा है, ऑक्टेन की प्रॉपर्टीज कम है. आइसो ऑक्टेन की प्रॉपर्टीज कम है, हेप्टेन की प्रॉपर्टीज ज्यादा है. सो इसकी ऑक्टेन रेटिंग कम होगी, है ना. आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 मे बी इसकी 60 होगी, इसकी 40 की तरह होगा. इट इज 40% लाइक ऑक्टेन, इट इज 60% लाइक ऑक्टेन. 40% लाइक हेप्टेन, करेक्शन. 60% like isooctane. So इसकी octane rating is like 60. But now let's say this is a very good quality fuel. ये this is anti detonating, anti knock. ठीक है. So इसकी octane की वैल्यू like 98 है, हेप्टेन का 2%. कंपैरिजन किया हम लोगों ने बेसिकली साइंटिस्ट ने. So इसकी octane rating 98 है. Got it? So we are comparing a fuel based on a few standard fuels. उससे हम लोगों को जो रेटिंग मिली that is octane rating. Higher the number, higher the number, Higher the rating, lower chance of detonation. resistance to detonation. Okay. Now, I have a question. एफ गैस और मो गैस हमारे पास दोनों है. हम लोग मो गैस क्यों नहीं यूज करते? एक बहुत बड़ा रीजन है. रेडबर्ड बंद इसी वजह से हुआ था, बिकॉज वो मो गैस यूज करता था. मो गैस एज अ फ्लूइड हैज अ हायर वोलेटिलिटी. मो गैस की जो वोलेटाइल नेचर है, इट इज मोर वोलेटाइल. अगर ये ज्यादा वोलेटाइल है तो इसमें वेपर रॉक भी आएगा.
व्हाट इज वेपर लॉक? बेसिकली फ्यूल की लाइन है, उसमें फ्यूल फ्यूल बीच में बबल, so that's a break in the fuel line. We don't want a break in the fuel line. Do you want a break in the fuel line? That is a vapor lock. Clear? इसीलिए इंजन अगर भी फेल होते हैं, दैट इज व्हाई यू डोंट यूज मोटर गैसोलीन। मोर ओवर स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग मैनूवर्स, या फिर आप उसको एक ऐसे ऑल्टीट्यूड पे लेके जा रहे हो जहाँ पे प्रेशर कम है। अगर प्रेशर कम होगा तो वोलेटिलिटी और बढ़ जाती है यार। So MOGAS is a very dangerous fuel for us. That is why we use avgas. It is less volatile. Okay? कोई doubt? Have you understood the grading of fuel as well? Now the same fuel has 2 octane ratings. I'll explain how. अगर वो फ्यूल को मैं लीन मिक्सचर पे यूज करूं या नॉर्मल मिक्सचर पे यूज तो करेक्ट स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो पे यूज करूं तो उसकी एक ऑक्टेन रेटिंग है। बट अगर उसको मैं रिच करके यूज करूं तो उसकी एक अलग ऑक्टेन रेटिंग होगी। बिकॉज व्हेन यू यूज अ मिक्सचर विच इज रिच, तो वो मिक्सचर क्या करता है, डेटोनेशन कम करता है। डेटोनेशन की जो चांसेस होती हैं वो और कम कर देता है, बिकॉज फ्यूल हैज अ कूलिंग इफेक्ट एंड यू हैव मोर ऑफ फ्यूल लेस ऑफ एयर। डेटोनेशन होता है लीन मिक्सचर्स पे, रिच मिक्सचर पे डेटोनेशन की चांसेस और कम हो जाती हैं। ठीक है, सो एट रिच मिक्सचर्स इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 87 की। एट रिच मिक्सचर ये 130 हो जाएगा, और एट रिच मिक्सचर ये भी 130 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Is that clear? Okay, perfect. So I've taught you what is an octane rating. We have discussed about ratings of fuel. Let's talk about calorific value. Calorific value. Farhad, what is a calorie? Energy. Heat. It's a unit of energy. Correct. Absolutely correct. Calorific value, it's a unit of energy. And calorific value is basically a value which tells us कि अगर मैंने इस फ्यूल को, 1 पाउंड के फ्यूल को मैंने बर्न किया तो मुझे कितनी हीट एनर्जी मिलेगी। दैट इज कैलोरिफिक वैल्यू। बस इतना जानना है हमें, बस इतना जानना है। सो डू वी वांट अ फ्यूल विद अ हाई कैलोरिफिक वैल्यू और अ लो कैलोरिफिक वैल्यू? हाई कैलोरिफिक वैल्यू, ऑफ कोर्स। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, राइट? सो नाउ लेट्स से आई हैव अ फ्यूल। यू नीड टू रियलाइज कि यार हम लोग जहाज में ना फ्यूल लेके जाते लीटर्स में। मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेंट है। हम लोग यहाँ पे 10 लीटर लेके गए, यहाँ पे भी 10 लीटर लेके गए, बट इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.72, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.74 है ऑन दैट गिवन डे। Which one has a higher specific gravity? Which one has a higher calorific value? यार दोनों 10 लीटर के हैं, बट इसका मास ज्यादा होगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका गाढ़ापन ज्यादा होगा, सो इसकी कैलोरिफिक वैल्यू भी ज्यादा होगी। This will release more heat when burnt, or this will release more heat when burnt. This will release more heat when burnt. Correct? So can we say that specific gravity is a direct it is in direct relation with the calorific value? Yes, of course. Good. So कभी भी पेट्रोल भरवाने जाओ, तुम तो लीटर के हिसाब से खरीदोगे, तो ठंड के टाइम पे जाओ, मॉर्निंग टाइम में जाओ, फ्यूल सिकड़ा हुआ रहता, ज्यादा पेट्रोल मिलेगा। Got it? So we spoke about calorific value. Let's talk about volatility. Whenever we say that something is volatile, that means if something is volatile, that means it can get converted into vapors very easily. Now, what increases the volatile nature? Many things. Firstly, अगर एक लिक्विड है, अगर इसकी हीट एनर्जी ज्यादा है, it will get converted into vapor quickly. अच्छा, अगर आउटसाइड एयर प्रेशर अगर हवा का दबाव यहाँ पे ज्यादा है तो ये वोलेटाइल नहीं रहेगा।
लेकिन अगर आउटसाइड एयर प्रेशर जो है, प्रेशर कम हो गया, एयर प्रेशर कम हो गया, तो ये वोलेटाइल हो जाता है। मतलब a substance will more easily get converted into vapors if the pressure outside decreases. आपने सीखा होगा स्कूल में, शायद हेनरीज लॉ या राउल्ट्स लॉ था। ऊपर जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कम क्यों हो जाता है? वो इसीलिए कम हो जाता है बिकॉज एयर प्रेशर कम हो जाती है। एयर प्रेशर से क्या लेने देना? बॉइलिंग हैपन्स। व्हेन डज बॉइलिंग हैपन? बॉइलिंग हैपन्स जब आपका वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एयर प्रेशर। अगर तुमने इसकी हीट एनर्जी बढ़ा दी, हर लिक्विड का एक वेपर का प्रेशर होता है, हर लिक्विड की वेपर्स होती है और उसका प्रेशर होता है। So now this vapor का pressure is less than the atmospheric pressure. It will not boil, it will remain in liquid state. But अगर तुमने इसकी हीट एनर्जी बढ़ाते गए तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड जब वो इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वो बॉयल हो जाएगा। दैट इज हाउ बॉइलिंग वर्क्स, राइट? वी हैव ऑल स्टडीड दिस इन स्कूल। तो वेपर प्रेशर उतना ही है, टेम्परेचर उतना ही है, लेकिन अगर मैं आउटसाइड प्रेशर ही कम कर दूं, more readily it will turn into vapors. Why is this important for us? For a fuel, do we want a very volatile fuel, or we want a less volatile fuel? We want a fuel which is less volatile. But we also want a fuel which is more volatile. I'll tell you how. If a fuel is more volatile, it will give you a problem of vapor lock inside your fuel system. Okay? But the second thing is, you also want the fuel to get evaporated, to get mixed with the air. So you want a certain level of volatility. It should not be very volatile, and it should not be involatile as well. Volatile is good. Very volatile is not good. अंडा समझ गया? पक्का? So we have studied about volatility. Do we want a fuel which is volatile? Yes. Do we want a fuel which is very highly volatile? कभी जाना अगर पेट्रोल पंप जाओगे ना नेक्स्ट, so take gasoline in one hand, little bit, just a drop, and take diesel in one hand, just a drop. By the time you see the diesel drop ना, ये वाला evaporate हो चुका होगा gasoline. Diesel evaporate नहीं होता because it is very volatile, बहुत कम होता है। कोई डाउट? पक्का? Good. Combustion process. Is there something that I need to teach you in combustion? You know what combustion is. Hydrocarbon का oxidizes it. You know what, right? Chalo, then let's focus on the more important parts here. अगर मैं आपसे पूछूं combustion के बारे में, what is combustion? Combustion is a controlled rate of burning. Combustion is a controlled rate of burning. ठीक है? It is not an explosion. So अगर वो एक कंट्रोल रेट में, तो वो रेट क्या है? चलो उस रेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। फ्लेम रेट, ये आप लोगों ने नाम पहले सुन रखा है जेट इंजन में, और जेट इंजन में आपने जब ये नाम सुना था तो वो 1 से 2 फीट पर सेकंड का था, करेक्ट? नियर अबाउट यही था वैल्यू, बट दैट वाज जेट A1 फ्यूल. Here it's gasoline. So the flame rate for gasoline is different. Gasoline is more volatile. So ये आग ज़्यादा जल्दी पकड़ता है, इसकी फ्लेम भी ज़्यादा जल्दी स्प्रेड करती है। इसकी फ्लेम रेट क्या है? 60 से लेके 80 फीट पर सेकेंड। Okay? What does this mean? This means that if there's a cylinder over here, flame will spread from this end to this end at this particular speed.
and the speed is fixed. And the speed is fixed. कोई doubt? चलो. Now, since the flame rate is fixed, we will have a problem. What problem do we have? We know that, let's take this to be a cylinder, and the moment we ignite a spark, we know that this mixture will burn at a certain speed. So we know कि यार आग को यहाँ से यहाँ फैलने में, अगर मेरे को मालूम है ये आधा फीट है, या लेट्स से इट्स 0.2 फीट, तो मेरे को आई नो इट विल बेयरली टेक एक्स अमाउंट ऑफ मिली सेकेंड्स, बट वो लगेगा, एक्स मिली सेकेंड लगेगा ही लगेगा. ठीक है. अब हमारा एम क्या है? हमारा एम है, सो व्हेनेवर वी हैव कंबशन, अ मेन एम इज कि यार जब मेरा पिस्टन ऊपर जा रहा हो, टॉप डेड सेंटर पहुंचा, टॉप डेड सेंटर पहुंचने के थोड़ा जस्ट बाद मेरे पास हाईएस्ट प्रेशर रहे, not at the top dead center, just a little after the top dead center, so that वो पावर स्ट्रोक में ही नीचे जाए. I'll explain. We want the pressure combustion to be completed, and the pressure to be at its maximum when the piston has been compressed, reached its top dead center, and just after the top dead center. 8 डिग्री 10 डिग्री आफ्टर द टॉप डेड सेंटर हम लोगों को तब चाहिए कि यार कंबशन कंप्लीट हो चुका हो, नॉट बिफोर दैट. क्योंकि अगर इससे पहले कंबशन कंप्लीट हो जाएगा, सो नाउ इट्स कंप्रेसिंग कंप्रेसिंग कंप्रेसिंग, इससे पहले कंबशन कंप्लीट हो गया, डू यू थिंक इट्स गुड फॉर अस? नो, द पिस्टन विल टेंड टू वर्क बैकवर्ड्स, कंप्रेशन स्ट्रोक में वो पीछे जाना चाहेगा. वी डोंट वांट दिस. सो ये सारी चीजों को प्रिवेंट कैसे करें? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया वेरिएबल ignition timing. What does this mean? This means that the mixture is ignited. The mixture is ignited early and the mixture is ignited late. In which conditions? Let's say the engine of the aircraft is running at a very low RPM. So I know that piston को ऊपर जाने में काफी लंबा टाइम लगेगा. अब इसमें मैं नॉर्मल टाइम पे स्पार्क कर दूं, पिस्टन तो स्लो मूव कर रहा है, इग्निशन पहले ही खत्म हो जाएगा, कंबशन पहले ही खत्म हो जाएगा. सो आई नीड टू डिले द स्पार्क, आई नीड टू डिले द इग्निशन, राइट? So in such a case, the mixture is ignited late, where you're running at low RPM. And at high RPM, it's going to be the vice versa. Why? पिस्टन को टाइम ही नहीं लगेगा ऊपर पहुंचने में, तो तुम पहले ही उसको कंबस्ट करके रख लो. Okay, so now this variable ignition timing. So how is this ignition timing measured? Is it measured in इतने मिलीसेकंड पहले मैं करूंगा? No, 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 no. It's measured in degrees of crankshaft rotation. It is measured in degrees of crankshaft rotation. Okay. ठीक है? In degrees of crankshaft rotation. ठीक है जी. Have a look at this image. ठीक है जी. So in theory, इग्निशन तब होता है जब आप टॉप डेड सेंटर पे होते हो, बट हाई आरपीएम पे क्रैंकशाफ्ट रोटेशन के काफी डिग्रीज पहले मुझे इग्नाइट कर देना चाहिए. इट्स यहाँ पे स्पार्क दिख रहा है ना येलो वाले पे, छोटा सा स्पार्क, या एंड लो आरपीएम पे it gets shifted close to the top dead center. Any doubts here? No?
पक्का, चलो करो। No. Let's talk about my favorite topic, which is detonation. What is detonation? Detonation is unstable combustion. Of gases, or basically the mixture. Normally क्या होता है? स्पार्क हुआ, आग फैली, खत्म कंबशन। तो डेटोनेशन क्यों हुआ? क्यों होता है ये? देखो, so whenever these mixture they burn, ये आपका पिस्टन है, ओके, बर्न हुआ, पिस्टन नीचे है, पावर स्ट्रोक इज कंप्लीटेड, नाउ द एग्जॉस्ट स्ट्रोक इज थ्रोइंग इट अवे। ठीक है, come go, very good. Now the engine is heated up, very good. Now there is this weak point inside the engine, this point, ये थोड़ा हॉट है, ये थोड़ा हॉट है। क्या होगा? इग्निशन वो यहां से तो दे ही रहा है, यहां से भी दे देगा। Before the spark can ignite it, this guy ignites it. This is known as pre-ignition. ठीक है, अब सोचो पेट्रोल इंजन को मैंने डीजल इंजन बना दिया, डीजल इंजन बना दिया। ये होता है डेटोनेशन। डीजल इंजन में क्या होता है कि भाई तुम उसको इतना कंप्रेस कर देते हो कि वो गैसेस खुद ही एक्सप्लोड कर जाए। करेक्ट, क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है यार, 25:1। तुम 25 यूनिट्स ऑफ एयर को 1 यूनिट में कंपेयर करोगे, वो उतना गर्म हो ही जाएगा। बट व्हाई डज इट हैपन इन अ पिस्टन इंजन एंड व्हेन कैन इट हैपन इन अ पिस्टन इंजन? द फंडा इज and a lot of factors, but why it generally happens is because of accumulation of end gases, exhaust gases. So piston ज्यादा ऊपर नीचे। चलो, now let's say spark आया, combustion हुआ, and now the piston is going down, power stroke is completed. Tell me something, Ankit, if there's 100 units of exhaust gases, do you think all 100 unit of those exhaust gases is pushed out in the exhaust? Do you think? नहीं ना, कुछ बचा रहेगा, कुछ हॉट गैसेस बची रहेंगी। इस बची खुची हॉट गैसेस को क्या कहते हैं? हम लोग इसको कहते हैं एंड गैस। सो नाउ अगेन दिस गाय sucks in more air, but out of that 100 units of air he has sucked, this 1 unit of air is the end gas. It is hot. But now he's doing this in 1 minute, he's doing it 1,000 times, and you're flying for 3 hours. So 1 hour, let's call it 60,000 times. 3 hours, 18,000 times. Do you think a lot of these end gases will be accumulated? Yes. Now, because now a lot of these exhaust gases, end gases have been accumulated, now at 3 hours and 1 minute, वापस उसने सक किया। अब जब वो सारा उसको कंप्रेस करने गया, अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है, प्रेशर भी बढ़ा ही होगा, ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ा है, प्रेशर तो बढ़ेगा ही। वो ऊपर जा ही रहा था, प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो खुद ही कंबस्ट हो गया, एक्सप्लोड हो गया, डेटोनेट हो गया। जब यह अनस्टेबल कंबशन होता है, फ्लेम रेट इज नॉट 60-80 feet per second, it is 1,000 feet per second.
So do you think this is good for the engine? An explosion happening? No, burning is good. It is made for that. But 1000 feet per second. Seriously. It's a violent burning of the gases. Okay, Ji? Why does it happen? Normally, accumulation of end gases. Accumulation of end gases. एंड ये इतना डेंजरस है, पता है इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. सो नाउ यू हैव अ पिस्टन and this piston has a crown, right? So this piston crown can burn, piston crown can break. One. Then what is the other weak thing? यहाँ पे डेटोनेशन होगा तो यहाँ पे जो वाल्व्स है ना, ये चले जाएंगे तुम्हारे, टूट जाएंगे. ठीक है, आरपीएम तो तुम्हारी जाएगी ही जाएगी. सो ये पेट्रोल इंजन का तो मैं समझ गया. डीजल इंजन में ये, डीजल इंजन में भी तो डेटोनेशन होता है. Why is it not a problem there? So now when you buy a diesel car and you buy a petrol car, which one is more silent? Petrol car is more silent. डीजल कार तो भैंसो हिलती है भाई, खट 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 खट. वो जो आवाज सुनते हो आप, इतनी ज्यादा लाउड आवाज इसीलिए होती है बिकॉज उसके अंदर डेटोनेशन हो रहा होता है. गॉट इट? वो लाउड इतना इसीलिए होता है बिकॉज उसके अंदर डेटोनेशन हो रहा होता है. डीजल इंजन आर नोन एज डेटोनेशन इग्निशन इंजन्स. It is the same reason why when you go and purchase a diesel engine car or a whatever, the engine is more expensive, the car is more expensive. Petrol cars are cheaper, diesel cars are expensive. Why? Because the engine is expensive. Diesel engines are more expensive than piston engines. Why are they more expensive? Because diesel engines have to be made that strong so that they can withstand the detonation. They can withstand that excess pressure. They can withstand compression ratios up to 25:1. ठीक है? तो इमेजिन करो एक पिस्टन इंजन जो एक पेट्रोल इंजन है, we just compared a petrol engine with a diesel engine, right? एक पेट्रोल इंजन है, उसके अंदर वो वाला कंबशन हो रहा है जो डीजल इंजन के अंदर हो रहा था. फट नहीं जाएगी उसकी. इट्स नॉट बिल्ट फॉर इट. Okay, so yes, we know that detonation happens because of excess pressure and temperature inside, right? But इसकी causes क्या क्या है? Let's talk about the causes of detonation. Okay, anything which increases the heat will increase your detonation. का will become a cause of detonation. ठीक है? So the first and foremost, incorrect mixture strength. ये आता है एग्जाम में, प्लीज लिख लो इसको. When I say incorrect mixture strength, I mean to say prolonged use of weak mixture. Prolonged use of weak mixture. Now, weak mixture or a lean mixture will give us a higher temperature of end gases. हमेशा याद रखना. मैंने आपको याद है बताया था 15:1 हमारा बेस्ट स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो होता है एंड इस पे हमारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, राइट? Temperature of the end gases will also be higher at this point. So do you think we always fly at correct stoichiometric ratio? No. We fly at a richer ratio, 13:1. ताकि EGT जो रहे हमारी कंट्रोल में रहे.
अगर मैं इस पे फ्लाई करूंगा मैं मे भी 4-5 घंटे फ्लाई कर सकता हूँ बिफोर माई सिलेंडर्स गेट अप फॉर अ टॉस. बट इफ आई फ्लाई हियर आई नीड टू मेक श्योर बडी कि यार ये मेरा भी 7 घंटे उड़ जाएगा यार खत्म. बिकॉज नाउ इट्स अ रिचर मिक्सचर. इफ आई वांट मोर पावर आई डोंट वांट टू फ्लाई एट अ लीन मिक्सचर. अब आप बोल रहे हो भैया पावर, आप बोल रहे हो भैया तो फ्यूल से नहीं डिसाइड होगा पावर कितने. नहीं, इन अ पिस्टन इंजन द वर्किंग इज अ लिटिल डिफरेंट. पिस्टन इंजन में पावर कंट्रोल होती है दो चीज़ों से. एक आपका होता है थ्रॉटल वाल्व. ये वाल्व खुलता है बंद होता है. ओके, दिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ मिक्सचर दैट इज गोइंग. एंड यहाँ पे होता है हमारे पास कार्बोरेटर. ये फ्यूल और एयर मिक्स का मिक्सचर कंट्रोल करता है. तो दिस इज द रेशियो कंट्रोलर 15:1 एंड दिस इज द एयर फ्लो कंट्रोलर. जब आप थ्रॉटल बढ़ाते हो कम करते हो ये थ्रॉटल वाल्व खुलता बंद होता है. मिक्सचर नहीं चेंज होता. मिक्सचर नहीं चेंज होता. आप फुल थ्रॉटल पे फ्लाई कर रहे हो मतलब आप फुल पावर दे रहे हो. बट अगर आप फुल पावर दे रहे हो लीन मिक्सचर पे भी दे रहे हो दैट्स अ प्रॉब्लम because it will give you detonation. So incorrect mixture strength will give you a higher exhaust gas temperature, which will give you detonation. Okay, greater the amount of air, greater should be amount of fuel. कोई doubt? The next cause is high charge temperature. What is charge here? ये देखो, ये तुम्हारा कार्बोरेटर था जिसने फ्यूल डाल दिया. सो दिस इज द इंडक्शन मैनिफोल्ड. यहाँ से हवा आती है तो यहाँ से यहाँ तक जो भी हवा आती है इसको हम लोग कहते हैं रैम एयर विच इज गेटिंग इनसाइड द इंजन. यहाँ पे हमारे पास फ्यूल मिक्स हुआ तो एनी एयर विच इज बिहाइंड बियॉन्ड दिस, इससे आगे जाके इसको हम लोग कहते हैं चार्ज एयर. ठीक है, चार्ज एयर का मतलब क्या? फ्यूल एयर का जो मिक्सचर है, जो फ्यूल एयर मिक्सचर, इसी को हम लोग चार्ज एयर कहते हैं. ठीक है, इसका टेम्परेचर अगर पहले से ही हाई हो सो वी डोंट वांट अ हाई टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर. बट भाई अगर तुम जो चार्ज एयर आ रही है वही हाई टेम्परेचर की आ रही है, क्या ही उखाड़ लोगे. सो वेंडर चार्जर क्यों बढ़ सकती है? थिंक अबाउट इट. वी हैव समथिंग नोन एज कार्बोरेटर हीट. सो व्हेन यू फ्लाई इन आइसिंग कंडीशंस आप क्या करते हो, जो इंजन की जो अंदर की काउलिंग है ना वो तो गर्म होगी, उसके अंदर की जो हवा होगी वो गर्म होगी ना. तो हम लोग वो अंदर की इंस्टेड ऑफ यूजिंग रैम एयर वी यूज द एयर विच इज इनसाइड द सिलेंडर काउलिंग ऑफ द इंजन फॉर इट टू गो इनसाइड द सिलेंडर्स. उसको हम लोग कहते हैं कार्बोरेटर हीट. सो बेसिकली वार्म एयर गोज इनसाइड द इंडक्शन मैनिफोल्ड. चार्ज एयर बढ़ा दिया. सो हाउ कैन चार्जर इंक्रीज? यूजिंग कार्बोरेटर हीट. सेकेंड, फ्लाइंग इन हाई टेम्परेचर एनवायरमेंट. दुबई में फ्लाई कर रहे हो. लास्ट, सुपर चार्जिंग. मैंने आपको बताया था ना सुपर चार्जर क्या होते हैं. सुपर चार्जर्स आर बेसिकली कंप्रेसर्स इन द इंडक्शन मैनिफोल्ड. वो हवा को कंप्रेस कर लेते हैं ताकि पिस्टन के ऊपर जो एयर का प्रेशर रहे वो ज्यादा रहे. बिकॉज अगर उसका एयर के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा आई विल गेट अ ग्रेटर पावर आउटपुट. टर्बो चार्ज इंजन, सुपर चार्ज इंजन. ओके, चलो. देन वी हैव इनकरेक्ट इग्निशन टाइमिंग. व्हाट डू यू मीन बाय इनकरेक्ट इग्निशन टाइमिंग? अगर तुमने स्पार्क बहुत ज्यादा जल्दी कर ली सो क्या होगा, पिस्टन ऊपर आ रहा है, कंबशन कंप्लीट हो चुका है. इफ द स्पार्क इज एडवांस्ड वेरी फास्ट अर्ली, मतलब तुम स्पार्क बहुत पहले दे रहे हो तो वो कंप्रेस हो रहा है, उसमें ही तुमने स्पार्क दे दिया, बहुत पहले स्पार्क दे दिया, कंप्रेस हो रहा है और खत्म भी हो गया, कंबशन खत्म भी हो गया. so now, जो तुमको रिजल्ट टॉप डेड सेंटर के जस्ट बाद चाहिए था ताकि एक्सपेंशन हो उसके बाद,
तुमको एक तो कंबशन पहले खत्म हो चुकी, सो नाउ यू आर एट योर हाईएस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर. नाउ द इंजन इज वर्किंग अगेंस्ट दैट हायर टेम्परेचर प्रेशर कि उसको और कंप्रेस करके उसका प्रेशर टेम्परेचर और बढ़ाते हैं. होगा डेटोनेशन? एक बार में नहीं होगा, बट अगर यही चीज 10 बार हुई तो होगा ना, राइट? भैया एक बार रिपीट करो, आपका वॉइस ब्रेक हुआ मेरे यहाँ पे. ओके, सो नेक्स्ट रीजन फॉर डेटोनेशन इज इनकरेक्ट इग्निशन टाइमिंग्स. अगर मेरा इग्निशन अर्ली इग्निशन हो गया, so it will cause detonation. Huh? So we have a cylinder. हम लोगों को चाहिए कि जो पिस्टन है नीचे टॉप डेड सेंटर के जस्ट बाद पहुंचे 8 to 10 डिग्रीज आफ्टर टॉप डेड सेंटर, तब इग्निशन कंबशन मेरा पूरा खत्म हो. दिस इज व्हाट वी वांट. बट नाउ लेट्स से कि तुम्हारा पिस्टन ऊपर आ रहा है कंप्रेशन स्ट्रोक में, एंड तुमने स्पार्क बहुत अर्ली कर दिया. सी, अर्ली इग्निशन, तुमने अर्ली इग्निशन कर दिया. सो बाय द टाइम द पिस्टन इज कमिंग अप, the mixture has ignited and the combustion has been completed by the time the piston reaches here. combustion हो भी गया, खत्म भी हो गया, उसके बाद भी और कंप्रेस कर रहा है उसको. so you are at your highest pressure, highest temperature, and then you are compressing it again. पहले क्या हो रहा था, 50 डिग्री सेल्सियस की हवा है, उसको कंप्रेस करूंगा, यहां तक लेके आ जाऊंगा, फिर आग लगाऊंगा. 60-70 टेम्परेचर रेज हुआ, फिर आग लगाऊंगा, फिर वो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा. ये था सीक्वेंस. अब क्या हो गया, सीक्वेंस कर रहा हूँ, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, आग लगा दी, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया. अब भाई वो 100 डिग्री सेल्सियस को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, तो जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस को तुम कंप्रेस करोगे वो 150-160 पहुंच जाएगा. So basically earlier you are compressing a 50 degree Celsius air, now you are compressing a 120 degree Celsius air. It will give you detonation, right? Inadequate cooling. ठीक है, use of incorrect fuel. This is the very important use of incorrect fuel. So let's say Ankit is a super rich guy and he owns a Ferrari and he is living in Bombay. So Ankit, will you go and with that Ferrari to the same petrol station where you get your normal everyday car? वही पेट्रोल डालोगे उसके अंदर? कौन सा पेट्रोल डालोगे? वो पावर, जो पावर आता है वो डालोगे? पावर भी नहीं डाल पाओगे. अगर आप उसमें पावर भी डालोगे ना तो भी उसमें डेटोनेशन हो जाएगा. Do you know this? No. So all of these supercars that you have in India, na, so another bigger problem with them is you need to feed them with the fuel that they are rated for. So now, not अब ये जो भाई तुम imported इंजन ला रहे हो, ठीक है, बट यार वो जो इंजन है फरारी का इंजन, इट विल ऑफ कोर्स हैव अ हायर कंप्रेशन रेशियो. ऐसे ही तो पावर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो हायर कंप्रेशन रेशियो उसका. तो ना हर किताब, हर इंजन के ना मैनुअल पे लिखा होता है कि वो उस इंजन में आप कौन कौन सा फ्यूल यूज कर सकते हो, कौन सी ऑक्टेन रेटिंग का फ्यूल यूज कर सकते हो. अब अगर तुम्हारा फरारी का इंजन डिजाइंड है टू फॉर अ फ्यूल विच हैज 98 ऑक्टेन रेटिंग, और तुम उसके अंदर साधारण पेट्रोल डाल रहे हो इंडिया का, उसमें 80 to 85 का ऑक्टेन रेटिंग होता है मोगैस में. पहले 85 से 90 हुआ करता था, बट अभी इथेनॉल ऐड होना शुरू हो गया, तो वो 80 to 85 आ चुका है. तुम उसके अंदर वो डालोगे, डू यू थिंक दैट फ्यूल विल बी एबल टू विथस्टैंड द कंप्रेशन रेशियो? नहीं ना, नहीं कर पाएगा. फ्यूल की भी ग्रेडिंग हम लोगों ने स्टार्टिंग में यही पढ़ा था, फ्यूल की ग्रेडिंग होती है, एंटी नॉक वैल्यू होती है उसकी.
So the use of incorrect fuel is also a very important thing. उसके अंदर फ्यूल भी तुमको वो वाला डालना पड़ेगा जो उसके लिए बना है, कुछ भी नहीं डाल सकते, राइट? So these are the causes of detonation. Any doubts here? No doubts? How will you recognize detonation? Let's say you're flying. How will you recognize detonation? टिक टिक टिक, एक मेटालिक नॉकिंग सी आवाज आएगी, ठीक है? एक मेटालिक नॉकिंग आवाज आएगी, कट 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 कट, दैट इज डेटोनेशन, ठीक है? पिंकिंग, अनदर कीवर्ड. कहाँ से आती है आवाज? भाई 1000 फीट पर सेकंड की हवा है, वो कंबशन चेंबर पे जाके लगेगी, उसके वॉल्स पे जाके लगेगी, कुछ तो आवाज क्रिएट करेगी. ओके okay? अब तुम फ्लाइट में हो, तुमने ये चीज ऑब्जर्व की, क्या करोगे? आरपीएम को थोड़ा सा कमा देंगे. करेक्ट. यू विल रिड्यूस द पावर, आरपीएम कम करोगे, मिक्सचर रिच करोगे, कूलिंग बढ़ा दोगे, और basically anything that can reduce the pressure and temperature is good. Okay जी, पक्का? No doubt. Okay. Now tell me something. This is mostly all about this fuel chapter. This is mostly all about the fuel chapter. Okay. Fuel में additives रहते हैं. There's a very important additive that is there, जिसे हम लोग कहते हैं तेल. टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है? This helps us prevent detonation. How? ये पेरोक्साइड नहीं बनने देता, बस इतना याद रखना है, और कुछ नहीं. पेरोक्साइड नहीं बनने देता है, इसीलिए डेटोनेशन प्रिवेंट करता है. टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है? फरहाद अभी जस्ट जो सिखाया, हाई ऑक्टेन रेटिंग के फ्यूल यूज करोगे तो कंप्रेशन रेशियो आप ज्यादा कर पाओगे यूज. हायर वापस ऑक्टेन रेटिंग, हायर ऑक्टेन रेटिंग का फ्यूल यूज करोगे, बेटर क्वालिटी का फ्यूल यूज करोगे, देन कैन यू गो फॉर अ कंप्रेशन रेशियो व्हिच इज हायर? हाँ. यस. सुपर चार्जर वाला इंजन डालोगे आप, फरारी वगैरह में क्या सुपर चार्ज इंजन रहते हैं, है ना? ऑफ कोर्स प्रेशर ज्यादा आ रहा है, टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है, इन द हाई क्वालिटी फ्यूल. ओके. व्हाट इज प्री इग्निशन? अंकित, इग्निशन हाँ बता बता, फरहाद बता. मतलब उसके टाइम होने के पहले जो, मतलब किसका इग्निशन टाइम? जब होना चाहिए उससे पहले उससे पहले क्या? कंबशन हो जाता. तो स्पार्क आ रहा है, स्पार्क स्पार्क. उसको इग्नाइट करने वाला है, उससे पहले इग्नाइट हो गया, दैट इज प्री इग्निशन. वी ऑल अंडरस्टैंड दैट. क्यों होता है? कोई कुछ, कहाँ से आ रही है वो हीट, कहाँ से आ रही है? इसी चीज ने उसको इग्नाइट किया. किस चीज से इग्नाइट हुआ वो, अगर वो स्पार्क प्लग से इग्नाइट नहीं हुआ? नहीं नहीं, एंड गैसेस का फंडा भाई, वो वीक पॉइंट नहीं, हॉटस्पॉट, बेसिकली अ हॉटस्पॉट, ठीक है?
जहाँ पे मान लो कूलिंग नहीं हो रही है, गर्म हो गया, सो मे बी लेट्स से यू हैव अ लोकल हॉटस्पॉट, तो वहां से आग पकड़ ली और कुछ नहीं। तो प्री इग्निशन भाई देख, ₹1,00,000 की एक बात है, ओके एवरीवन, ₹1,00,000 की एक बात। प्री इग्निशन हैपेंस बिकॉज जो ढांचा है, द सिलेंडर इज हॉट, ओके, इन द सिलेंडर यू हैव अ लोकल हॉटस्पॉट, उसने मिक्सचर को इग्नाइट कर दिया, दैट्स प्री इग्निशन। It's not an explosion, it's not bad, it will just cause the ignition to happen at a off time। वो एक पर्टिकुलर जगह के लिए ट्यून्ड है, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इग्निशन के लिए ट्यून्ड है, इतने डिग्री पहले इग्निशन होना, उससे पहले इग्निशन हो गई यार, दिक्कत आ जाएगी। So that is pre-ignition. Why does it happen? Because of hotspots in the walls of the cylinder. Why does detonation happen? Detonation happens because the entirety of it, even the mixture is hot। वो मिक्सचर फटता है बिकॉज द इंटायर गैसेस इनसाइड आर हॉट। वॉल्स गर्म है, प्री इग्निशन, मिक्सचर गर्म है, डेटोनेशन, इजी। डीजल इंजन गर्म होता है बट उसमें प्री इग्निशन नहीं होता, उसमें डेटोनेशन होता है बिकॉज द गैसेस आर दैट। ओके, नाउ लेट मी read this particular diagram, read this particular material. I want everyone to read this. Is it the same thing that I've taught you? If you go and read the ignition chapter from Oxford, it's going to be exactly what I've taught you. Okay. So what I will suggest you right now, go do this fuel chapter. Sorry, not ignition chapter, fuel chapter. Read it. Questions कर लो उसके।